Hotel Management, New Delhi, and co-founder of I Teach, I Train, a training venture by Mr. Srivastav. We welcome you, sir. Thank you, Chef Atul. Sir, now the floor is all yours. We are waiting for your session. Thank you once again. So let me first thank you, Chef Sakesh, Chef Saurabh, and Chef Atul to welcome me in such a kind manner. And I was looking forward to this session for now quite a week. I mean, for a week now. So I can go bilingual. Is that all right? What about you, girls? आप क्या चाहते हैं? Hindi, English, या you want to be in English only? Anybody can reply? Anyone? Subhadra Gope, I can see you. I think you can reply. आप कैसे चाहते हैं? हिंदी या इंग्लिश या कैसे? Subhadra Gope, I think I can see you right now. Yes, sir. Okay, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा? Yes, sir. ठीक है. Thank you very much. So first of all, good morning. So first of all, let me begin by saying that interview is a process which is somewhere आपको लगता है कि yes problem है, हम कैसे करेंगे, किसके सामने बैठेंगे, but it's a process in which the word itself means interview. So interview का क्या मतलब है? A view between two people who wants to just interact. तो इंटरव्यू सबसे पहली बात जो आपको समझने वाली ये है कि आपसे कोई बात करना चाहता है, आपसे बात करके वो जानना चाहता है आपके बारे में. एक बहुत जरूरी चीज बिफोर आई बिगिन इंटरव्यू सेशन इज टू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरव्यू वांट्स टू टॉक एंड दे डोंट हैव टाइम. तो आपको जितना प्रिसाइजली, जितना एक्यूरेटली अपनी बात को रखेंगे, उतना इंटरव्यू में सक्सेस को आप अचीव करेंगे. सो ये बात बहुत जरूरी समझने वाली कि इंटरव्यू से डरना नहीं है, घबराना नहीं है. And we need to actually be confident. And how confident we can be? Let's start the process of understanding the interview. So before I go further, how many of you want to learn in a very enthusiastic manner or boring manner? So you can say yes if you want to learn with an enthusiastic manner. Chat box में लिखिए. If you want to learn through enthusiastic, please write in chat box yes. I want to see yes from everybody in the chat box. Okay, I can see Nikhat, Praveen, Pratibha saying yes. What about rest? Okay, Seema. Okay, I can Sadaf, Rani. Oh yes, everybody is doing so. Very nice, very nice. So Rinku, Seema. Okay, yeah. So all of you want to learn about interviews, and let the process begin. Okay. So before I begin the process of the formal PPT, I start with a very, very simple exercise. So Shakesh sir, can all of us unmute a bit? Shakesh sir. Yes, sir. All students, आप लोग unmute हो जाइए. Okay. So all students can unmute. All students can unmute. आप unmute कर लीजिए अपने आप को और मुझे आवाज सुनाई देनी चाहिए. ठीक है, थोड़ा सा शोर हो कोई बात नहीं, हर का शोर अच्छा होता है हमारी एनर्जी लेवल के लिए, एंथुसियाज्म के लिए. ओके, सो आई डोंट फॉलो माय इंस्ट्रक्शन. ओके, अपना हाथ ऊपर कीजिए, अपना हाथ ऊपर. सब लोग अपना हाथ में देख पा रहा हूँ. लक्ष्मी कुमारी, प्रतिभा, यस. अजिता आप नहीं कर रही हैं, करिए हाथ ऊपर. ओके, कैमरा ऑन. थैंक यू सुभद्रा. ओके, आप बोलेंगे आई हियर. क्या बोलेंगे? I hear. एक साथ बोलेंगे 1 2 3. आई हियर. I hear. I forget. I forget. I hear. I forget. I see. कैमरे से कहाँ गायब होगा सब लोग? कैमरे पे रहिए. I see. I believe. I believe. Yes. But when I do. I understand. Yes. So that's the first task for everybody to understand कि जब तक आप जो भी हम आपको बता रहे हैं इसको करेंगे नहीं तो आपको आएगा नहीं. So I see, I hear, I forget, I see, I believe, but when I do, I understand. So that's the first learning you need to take to begin the process. Okay. So can I share the screen now, Shakesh sir? Yes, sir. Yes, sir. Please. Okay, right. So I am now sharing the screen of the PPT. Let's start the process. Okay. Yes, sir. Now you can all go on mute. Okay.
I'll tell you when to. So you can see my screen right now. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay, Yes, okay. Yes, sir. Yeah. Yes. So, okay, so before we go for interview process and formally understand what is it means, understand that preparation and confidence are two important ingredients to get selected in an interview. It's not just the content part. आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि आपका कंटेंट बहुत हैवी हो जाता है, वोकैबुलरी आपकी बहुत अच्छी होगी या आप ज्यादा अच्छा बोल पाएंगे, लेकिन जितना उसको रिहर्स करेंगे, जितना बार बार उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, आपका इंटरव्यू और बेटर होता जाएगा. तो पहला जो मैं टिप आपको देना चाह रहा हूँ, these are the few tips to begin the process. So पहला है आपका start from your home early. इसका मतलब ये है कि when you are understanding the process, be very punctual. Punctual का जो मतलब है, कोई मुझे बताएगा punctual का मतलब in the chat box? Can I see the chat box? Yes. What is the meaning of punctual? On the time, says Nikhat Parveen. Anybody else? निखत के साथ और कोई बोलना चाह रहा है? On the time बोला निखत ने, और anybody? अच्छा, on the time किसी और का कोई और meaning? Okay, so नहीं है तो मैं बताता हूँ. On the time is in dictionary. For a hotelier, a chef, a person who wants to grow in their career, it's actually before time. So you need to start bit early. अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप जल्दी पहुंचे. आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप उसे पहले करें. आपका रिज्यूमे पहले बनना चाहिए. आपका प्रिपरेशन लेवल थोड़ा सा पहले चलना चाहिए. So that is what it means by reaching before time. You should every time आपके मन में होना चाहिए कि मुझे ये काम थोड़ा सा पहले करना है. I have reached a lot of things and done a lot of things because of this fact that yes, I did not wait कि कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा. हमें अगर लगता है ये काम करना जरूरी है तो हम उसे कर रहे हैं. It is applicable to your grooming part, it's applicable to your answers part, it's applicable to your confidence part. Okay, next, let's go for the next one. Do your research. तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट इंटरव्यू के अंदर ये रहता है कि जब आप इंटरव्यू की बात करते हैं तो आप जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं कि कितना आप उसके प्रिपेयर्ड हैं. अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं तो आपने उसकी वेबसाइट में जाके देखा कि वो कंपनी क्या है, वो क्या नहीं है. तो मैं यहाँ इंपॉर्टेंट एक आपको टिप देना चाहूंगा कि प्लीज रीड अबाउट द मिशन एंड विजन स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी. अब उस कंपनी का क्या मिशन है, वो कंपनी किस लिए फेमस है, उस कंपनी के क्या क्या आउटलेट्स वगैरह हैं, ये सब आपको जानना एक जरूरी बात है बिफोर यू गो फॉर द इंटरव्यू फॉर दैट कंपनी. दूसरी बहुत बड़ी बात जो आपको नोट डाउन करनी है वो है कि इंटरव्यू के अंदर उस कंपनी की अचीवमेंट्स के बारे में बोलिए. बहुत सारी चीजें होंगी उसके. पहली तो एक तो हिस्ट्री होती है जो कि आपकी कंपनी थोड़ी पता होनी चाहिए. अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उसकी अचीवमेंट्स पढ़िए. हर आदमी को लगता है कि आप उसके बारे में कुछ अच्छा बताएं, तो जब इंटरव्यू के अंदर आप उनके बारे में बताएंगे, सर मैं आपको इसलिए ज्वाइन करना चाहती हूँ क्योंकि ये कंपनी इतनी बड़ी है या इस कंपनी ने ये अचीव करा है, तो ये बहुत बड़ा लर्निंग कर्व होगा आपके लिए भी और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. आप उसके बारे में जितना जानेंगे आपको और कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मुझे इस कंपनी में क्यों जाना चाहिए. ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हो गया कि डू योर रिसर्च फॉर द कंपनी व्हेन यू आर सिटिंग फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट एंड वुमेन मोर परफेक्ट. ठीक है, so practice looking in the mirror and answering the questions out loud. This preparation work will help you clarify your thoughts and make you much more comfortable during the interview. हम अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे जब हम चांदीवाला में हम अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं अपने लास्ट ईयर में प्रिपरेशन के लिए, तो हम कहते हैं ज्यादातर आंसर आप लिख के याद कीजिए. अब आप बोलेंगे लिख के क्या याद कीजिए. क्या होता है कि जब आप उसे लिख के याद करते हैं तो आपका वो पहला ड्राफ्ट होता है. आप जरूरी नहीं कि वही वाला आंसर आपके मन में आप जब बोलना चाहें वो निकले, लेकिन आप बेटर पोजीशन में होते हैं बोलने के टाइम क्योंकि आपने एक बार ही उस आंसर को लिख लिया. हम एक बार, दो बार, कई बार 3 बार भी उस आंसर्स को लिखवाते हैं ताकि आप अपनी बात को रख पाए. एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में बार बार आता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. बार बार आपसे ये पूछा जाएगा शुरुआत के अंदर कि
मैं नाम ले रहा हूँ जो मेरा नाम है, जैसे रानी रश्मि कुमारी का सामने मेरा वीडियो आ रहा है, तो मैं अगर मैं बात, तो रानी अपने बारे में मुझे कुछ बताइए। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, अगर रानी प्रिपेयर्ड नहीं है तो वो कुछ भी बात करेंगी, ओके, अपने घर परिवार की बातें करेंगी, अपनी आकांक्षाओं के बारे में बातें करेंगी, लेकिन इफ प्रिपेयर्ड है तो उनको मालूम होगा कि अभी मुझे नाम बताना है, मैं कहाँ से हूँ, मेरी क्या क्वालिटी है, मेरा एक्सपर्टीज एरिया क्या है, और मैं किस लिए नोन फॉर हूँ, मेरे अंदर क्या अचीवमेंट है, मैं क्या अचीवमेंट बता सकती हूँ। तो इस तरह से आपका जब प्रिपरेशन हो जाता है, जब उसकी प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे, तो देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड, राइट? एम आई ऑन द राइट ट्रैक? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You have, you can write on chat box or wait for some time, और आप अनम्यूट करके भी मुझे बीच में अगर लगे तो आप पूछ सकते हैं, अगर मैं उस टाइम दे पाया, नहीं तो फिर बाद में मैं क्वेश्चन लूंगा आपसे, ठीक है जी? आगे बढ़ते हैं। ड्रेस द पार्ट, ये आपको बार बार शायद इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर बताया गया कि हाउ यू नीड टू ड्रेस प्रॉपर्ली, व्हाट नीड्स टू बी डन। सो कुछ चीजें ड्रेसिंग में होती है कि जैसे आपका जो आप ड्रेस पहने, कुछ जो आपको पता है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं वो बताऊंगा जो आपको शायद नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, आपको उस दिन इंटरव्यू के दिन बिल्कुल नया कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, मतलब बिल्कुल एकदम, क्योंकि क्या होता है, यू शुड बी कंफर्टेबल इन द क्लोथ्स यू वेयर। सो उस कपड़े को एक बार आपका पहना, अगर आप शेफ यूनिफॉर्म में आप इंटरव्यू दे रही हैं, तो आपका शेफ यूनिफॉर्म आपकी प्रॉपर्ली अच्छे से आयरन हो, अच्छे से उसको जो है आप प्रेजेंट कर पाए। और कॉन्फिडेंस ऐसी चीजें जो कि आपकी आंखों में दिखता है। अगर आप आंखों में कैसे दिखेगा, जब आप फील करेंगे कि यस आई एम इन अ प्रॉपर ड्रेस। हम लोग ज्वेलरी को मना करते हैं या फिर हैवी डियोज को मना करते हैं, क्योंकि ये चीजें जरूरी नहीं होती किसी भी उसके लिए। और अपने आंसर्स को जो आप रखें, आपको बहुत जल्दी नहीं बोलना है, आपको बहुत आराम से उसको जो आप बात करना चाहते हैं, चाहे आप कम बोलें लेकिन आप सटीक बोलें, क्वालिटी का कुछ कंटेंट बोलें। तो यहाँ पे ड्रेसिंग की बहुत जरूरी एक इंपॉर्टेंट बात है। यस, एनी क्वेश्चन नीतू? एनीथिंग यू वांट टू आस्क नीतू? No, sir. ठीक है, तो आप म्यूट कर लीजिए फिर, थैंक यू। अब अगली बात आती है फर्म हैंडशेक की। तो आज की डेट में कोविड का टाइम है, तो नोबडी एक्सपेक्ट्स कि वो हैंडशेक करें या आप करें, बट जैसे आप आगे बढ़ेंगी, तो जैसे आप अपने करियर में आगे अपना जॉब बढ़ता है, तो आप हैंडशेक्स की बात आती है, तो डोंट बी वेरी एग्रेसिव, बट इट शुड बी अ कॉन्फिडेंट हैंडशेक व्हेनेवर यू आर मीटिंग समवन। डू नॉट ऑफर टू शेक हैंड्स। तो ये तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट येस, आप एज ए फीमेल यू कैन अवॉइड दैट, और यू कैन बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन यू सिट इन द इंटरव्यू रूम। हैंडशेक का जो है ना, वो कंसर्न ये होना चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंट हैंडशेक होना चाहिए, यही इसमें जरूरी बात है। अब इसके लिए आज मैं डिटेल में लूंगा, तो मैं यहाँ पे बस एक पॉइंट लिया हुआ है कि बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग थ्रू योर पोस्चर एंड स्टांस। सो ब्रश अप ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज के दो पार्ट हैं, हालांकि उसमें मैं डिटेल में लूंगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ दे देता हूँ। बॉडी लैंग्वेज इज टू डू विद योर जेस्चर्स एंड पोस्चर्स। सो जैसे कि आपने मुझे देखा, हो सकता है मैंने बोला भी ना हो, लेकिन आपके मन में कुछ ना कुछ इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है कि यस, अब मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो क्या, तो वो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मैं कैसे उस बात को रख रहा हूँ। इस तरीके से बात करने से पहले मेरी बॉडी लैंग्वेज इट स्पीक्स बिफोर आई से एनीथिंग। सो जेस्चर्स आर योर हैंड मूवमेंट्स एंड पोस्चर्स आर द वे यू सिट, यू स्टैंड एंड यू वॉक। एक जनरल सा एक रूल मैं बता देता हूँ, जो कि आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। वो ये है कि अगर आप बॉडी लैंग्वेज में अच्छा करना चाहते हैं ना, ट्राई वॉकिंग फास्टर। आप देखेंगे अपने इंस्टीट्यूट में भी जब आपने प्रैक्टिकल सेशन कर रहे, कुछ लड़कियां होंगी जो थोड़ा धीरे धीरे, कौन सी क्लास है, अरे क्लास है, चलो चलते हैं। कुछ होंगी, अरे करते हैं ना क्लास, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, देखिए कुछ अलग करके देखते हैं, कुछ अरे ये तो रोज ही हो रहा है कर। तो जिस तरह की आपकी लैंग्वेज और लाइन आ रही है ना, वो आपके बॉडी लैंग्वेज को डिफाइन कर रहे हैं। तो एक आप छोटा सा कर सकते हैं कि जब भी आप कहीं जा रहे हैं ना, थोड़ा सा 25% तेज चलिए कहीं भी पहुंचने के लिए। अभी आप घर में या बाजार जा रहे हैं, आप लोग मॉनिटर करिए कि आप बहुत स्लो चलते हैं कि आप फास्ट चलते हैं। अगर आपकी ब्रिस्क वॉकिंग होती है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो चेंज आएगा जब भी आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे इंटरव्यू में। क्योंकि देखिए, इंटरव्यू जो है ना, वो रिजल्ट है उस प्रोसेस का जो कि आप रोज जीते हैं, अब रोज जीने की बात से मुझे याद आया, एक वर्ड होता है हैबिट। ठीक है जी, मैं एक वर्ड लिखता हूँ हैबिट, चैट बॉक्स में लिख देता हूँ मैं। ये वर्ड बहुत ही पावरफुल वर्ड है। हैबिट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? एनीवन? आदत, ठीक है। मगर क्या मतलब है आदत? तो हिंदी में उसका आपने ट्रांसलेट कर दिया, मतलब क्या है इसका? आदत से क्या मतलब है?
सर जिस चीज को करने में बार बार मतलब आदत लग जाती है, बिल्कुल, या फिर हम उसे रोज आदत। करते हैं। अगर हम उसे इस तरह रोज देखें करते कि हैं। हम रोज करते हैं, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। अब आप ध्यान से इस वर्ड को देखिएगा और इसमें से मैंने एच निकाल दिया। तो नरगिस आप अनम्यूट करके रहिए, आप मुझे बताइए क्या 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 लिखा हुआ है। Habit, A a bit, bit, a bit, a bit, bit, bit। और अगर मैं इसमें से ए भी निकाल दूं तो क्या क्या बचेगा? bit, बिट bit. बचेगा। और अगर मैं Yes, sir. बी भी निकाल दूं तो क्या क्या बचेगा उसमें? It. इट। सो हैबिट ऐसी चीज है जो कि इट रिमेन्स थ्रू आउट। अच्छी या बुरी आदतें इसलिए हम कहते हैं अपनी आदत अच्छी रखिए, जब वो रिमेन करेगी तो आपको अच्छी आदतों में जाना है। यू हैव टू बी गुड विथ हैबिट्स विच आर maybe to do with communication, maybe to do with the hygiene, maybe to do with your grooming. Everything remains because everything is a part of habit. ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई सवाल है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन? ठीक है, चलिए आपके क्वेश्चन होगा तो पूछेगा मुझसे। एंड ऑलवेज ट्राई टू मेक इन आई कॉन्टैक्ट विद द इंटरव्यूअर। सो जब आप इंटरव्यू में बात करते हैं तो ऐसे नहीं कि उसे घूरना है, ऐसे नहीं, यस सर, नहीं, ब्लैंक लुक नहीं है। यू हैव टू बी अ बिट इजी, टॉक स्ट्रेट, डू नॉट राइट लेफ्ट। कोई क्वेश्चन यार सर मुझे नहीं पता सर, पता नहीं क्या, तो यू शुड नॉट लुक लाइक दैट। और या फिर ऐसे नीचे देख के सर मुझे या अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, ऐसा नहीं। यू हैव टू टॉक स्ट्रेट व्हेन यू आर टॉकिंग टू द इंटरव्यूअर, सो दैट कॉन्फिडेंस विल गो टुवर्ड्स दैट इंटरव्यूअर। ध्यान करिएगा, इंटरव्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है कि इंटरव्यूअर से ज्यादा प्रिपेयर्ड इंटरव्यू ही होता है। इंटरव्यूअर कभी भी प्रैक्टिस करके नहीं आता है, आप प्रैक्टिस करके जाते हैं। तो आप हमेशा ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं इंटरव्यू में जब अगर आप प्रिपेयर्ड होते हैं, ठीक है। एंड देन दिस माइट बी माय फर्स्ट थिंग, बट यस, हमने इसको जब पीपीटी बनाया तो उसको थोड़ा सा आगे रखा हुआ है, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स को काफी बार ये चीज बताते हैं, मगर आपको बताएंगे। सो यू नो, a smile conveys that you are someone who can get along with fellow employees. Wow the boss, impress the client. So you have to smile a lot. ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा स्टॉप शेयर करूंगा, हल्का से स्टॉप शेयर करूंगा। मैं चाहूंगा आप कैमरा खोलें जरा, सब लोग ओपन योर कैमरास, एवरीबडी एवरीबडी, I should see everybody, everybody. Saket sir, you are there? Saurabh sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now everybody is on the camera. Everybody smile to the best smile you can give. Best smile. मेरी तो बेस्ट ये है, आपकी क्या है? Can you take a pic, sir? Saurabh sir? Yes, sir. Yes, sir. Screenshot something. Best smile, everybody. Yes, that's very good. That's very good. अंजिला, अच्छे स्माइल, और थोड़ा सा और अंजिला, बढ़िया से। Yes, so that's what it's required in an interview. जब आप इंटरव्यू में आपको कुछ ना है, ब्लैंक स्माइल नहीं देनी, बट yes, you need to be very a warm personality. कोई भी आदमी जो आपको हायर करता है, कोई भी इंटरव्यूअर, लेडी जेंटलमैन, कोई भी, वो आपको इसलिए हायर करेगा क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी पसंद आएगी। और पर्सनैलिटी जो होती है वो 3 चीजों से बनती है। हल्का सा मैं आगे जा रहा हूँ, बट ये चीजें भी आप ध्यान की। पर्सनैलिटी बनती है कि आपका थिंकिंग कैसा है, पर्सनैलिटी बनती है कि आपका बिहेवियर कैसा है, पर्सनैलिटी बनती है कि हमें आपसे कैसी फीलिंग आ रही है। अब थिंकिंग और बिहेवियर में फिर भी आप काम कर सकते हैं, मगर कैसा मैं आपके बारे में फील कर रहा हूं, ना तो मैं आपको डिस्क्राइब कर बता सकता हूं, ना आप मुझे बता सकते हैं, बट वो फीलिंग है। सलमान खान फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों से बहुत सारे सलमान खान के फैन भी होंगे, लेकिन कुछ नहीं भी होंगे। कोई कहेंगे नहीं नहीं वो नेगेटिव पर्सनैलिटी है, लेकिन आप मिले क्या उससे? अमिताभ बच्चन, आप उससे मिले नहीं है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। ये क्यों? क्योंकि हमें उनसे फीलिंग आ रही है, अच्छी फीलिंग आ रही है। तो इंटरव्यू में इस चीज को बहुत महत्व दिया जाता है कि हमें किस तरह से, आप जब आंसर कर रहे हैं, आपके बॉडी मूवमेंट, आपकी आई कॉन्टैक्ट कैसा है, उस हिसाब से भी आपकी हायरिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। ठीक है, चलिए वापस मैं पीपीटी में जा रहा हूँ। ठीक है, सो ये बहुत जरूरी है बात कि अ स्माइल which takes you a long mile. ये लाइन लिख लीजिए, आपको लिखनी है तो। Smile takes you a very long mile in your life. It's very easy for me to say, don't be nervous, be calm. Remember, no one will hang you till death if you are not clear with the interview. There is always a second chance, but फिर भी नर्वसनेस होती है। अब नर्वसनेस क्यों होती है? क्योंकि हमें लगता है हमसे तो कुछ भी पूछ लेंगे। Anything can be asked from the interviewer. Interviewer can ask anything. बट नहीं, मजे की बात यह है, या द फन पार्ट ऑफ दिस इज
दैट इंटरव्यू जो है वो सिर्फ यूजुअल क्वेश्चन पूछते हैं। पहले वो काम उनका होता है आपको काम डाउन करना। काम डाउन करने के बाद उनको लगता है कि अब हम उनसे थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछ सकते हैं, उसमें भी थोड़ा टेस्ट करते हैं। जैसे आपका कोई कुजीन ले लेंगे, मान लीजिए आप झारखंड कुजीन पे आप बोलते हैं आपको बहुत नॉलेज है, तो पहले वो इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे, फिर कुछ रेसिपीज की बात करेंगे, फिर आपने उसका भी है तो फिर आगे बढ़ेंगे और साथ में वो पूछते रहेंगे आप ये क्यों बनाना चाहते हैं, आपने यही क्यों बनाया, आपकी बेस्ट डिश कौन सी है, आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके या इंस्टीट्यूट कर आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आके आप किस तरह से हम अपने आप को वैल्यूएबल बना सकते हैं, कुछ इस तरह की बातें आपसे की जाएंगी। तो बहुत ही क्लियरली और बड़े साफ शब्दों में बोला जाए तो ट्राई टू रिमेन एज काम एज पॉसिबल। अब वो कामनेस कब आएगी? जब आप एट पीस होंगे, जब आपको लगेगा कि ये मुझे यहाँ से निकालना नहीं चाहते, ये मुझे यहाँ से ले जाना चाहते हैं। इंटरव्यू में 2 वर्ड होते हैं, पहला होता है सिलेक्शन और दूसरा होता है एलिमिनेशन। आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं एलिमिनेट हो जाऊंगी, आपको जाना है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी। एलिमिनेशन का काम आपके इंटरव्यूअर का है, क्योंकि उनको मान लीजिए 25 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू लिया तो उसको 5 लोगों को सिलेक्ट करना है। लेकिन आप अगर सोचेंगे कि मैं एलिमिनेट हो जाऊंगी तो पहले हो जाएंगे, पहले ही आपने हथियार डाल दिया। सो ट्राई नॉट टू बी नर्वस इन द इंटरव्यू एंड ट्राई टू स्टे एज काम एज पॉसिबल। एंड देन एज यू आर लीविंग योर इंटरव्यू यू शुड रिमेन काम इन द इंटरव्यू एंड थैंक द इंटरव्यू। ये कई बार नहीं करते, कई बार लोग जब एक टाइम आएगा कि आपको हमसे कोई क्वेश्चन है तो आप बहुत शर्मा के बोलेंगे नहीं सर हो गया, मतलब इतनी टेंशन होती है सर इतने क्वेश्चन कर लिया, अब एक क्वेश्चन और आपने पूछ लिया। नहीं, उस समय ही आपने पूछना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके हमारे बारे में कुछ क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए, जैसे कि सर आप ये कंपनी में हमारा फ्यूचर कैरियर ग्राफ कैसा रहेगा, या हमें क्या इसी जगह पे रखा जाएगा या हमें ट्रांसफर भी कराया जा सकता है। तो ये बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन है, इसमें आपने ये नहीं कहा कि मेरे को सैलरी कितनी मिल रही है, नहीं, आप बहुत नॉर्मल से बात कर रहे हैं कि मैं ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन हूँ और मैं जो है एक क्वेश्चन मेरा ये भी है। इससे कॉन्फिडेंस भी शो होता है और आप ये चीज तभी कर पाएंगे जब आप उसकी प्रैक्टिस करें। तो व्हेन एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू डू ऑलवेज ट्राई टू थैंक द इंटरव्यू। ठीक है जी, तो यहाँ मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे कुछ आप कह लीजिए कि टॉप 10 पॉइंट्स कह लीजिए, कुछ पॉइंट्स जिसके बेसिस पे बहुत सारे बच्चे हायर होते हैं और बहुत सारे बच्चे मुझे अच्छा फीडबैक मिला है। सो टिल नाउ एनीबडी एनी क्वेश्चन, आई एम वेटिंग द चैट बॉक्स, प्लीज शूट योर क्वेश्चन इफ यू हैव सो दैट आई कैन आंसर राइट नाउ एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट प्रोसेस। क्या एनी हाँ बताइए मेरा हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताइए। जुबर रहमान नाम है आपका? मिस रहमान? रीना यू हैव अ क्वेश्चन, आपने अनम्यूट किया था। हाँ बताइए, कोई क्वेश्चन है तो आई एम वेटिंग फॉर यू। कोई क्वेश्चन तो बता सकते हैं या कोई भी आप पूछ सकते हैं अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ होगा कि हाँ इंटरव्यू में ये प्रॉब्लम है या कुछ अगर आप फेस कर रहे हो, आगे भी मैं पूछता रहूंगा। शायद या उनका माइक्रोफोन नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, चलिए तो हम अब नेक्स्ट एक चीज पे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून होने वाला है, बताइए। ये सर मेरा क्वेश्चन है, जब हम लोग को इंटरव्यू के लिए बताया जाता है या बोला जाता है उससे वो पहले हम बहुत नर्वस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते, तो उस चीज को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? हाँ बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये सवाल जो है ये सबके मन में घूम रहा होगा, लेकिन रीना ने हिम्मत करके पूछा, तो मैं पहले अप्रिशिएट करूंगा रीना को कि आपने पूछा। देखिए कोई भी काम में नर्वसनेस तब आती है जब आप वो पहली बार कर रहे होते हैं या दूसरी बार कर रहे होते हैं या 1 2 3 बार कर रहे होते हैं। जब आप उसे 2 4 बार कर लेते हैं ना तो आपको नर्वसनेस कम हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम इंटरव्यू की तैयारी कई बार अकेले कर रहे हैं, तो मैं एक आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, रीना ने अच्छा क्वेश्चन पूछा इससे मैं क्यों लेते हुए, कि आपको थोड़ा सा ग्रुप बना के अपना एक, मान लीजिए जैसे आप अभी भी हैं तो जूम मीटिंग पे आप मिल लीजिए, आप 2 4 5 क्वेश्चन जो है आपस में बात करिए, एक इंटरव्यूअर बन जाए, एक इंटरव्यूई बन जाए, और आपस में आपने क्वेश्चन पूछा और उन्होंने आंसर किया, और एक तीसरा पर्सन सिर्फ ये ऑब्जर्व कर रहा है कि आप दोनों में कौन कैसे बात कर रहा है। ठीक है, इस तरह से आप ये प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं, इससे नर्वसनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। दूसरी बात है, ये मत सोचिए कि आपसे वो कुछ भी पूछ लेंगे, एकदम इंटरव्यू एक सदी हुई प्रोसेस है। आपको इंटरव्यू करने वाले लोग बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू करके आते हैं और फिर वो आपका कर रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल एकदम सेट पैटर्न है। पहले शुरू करेंगे, आप अपने बारे में बताइए,
फिर कहेंगे आपकी स्ट्रेंथ बताइए, आपकी वीकनेस क्या है बताइए, आप में क्या खास है बताइए, आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए बताइए। इस तरह के क्वेश्चन को लेके चलेंगे। आपने पिछले 1.5-2 सालों में जो आपने कोर्स करा उसमें क्या क्या सीखा बताइए। तो क्या ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप प्रिपेयर नहीं कर सकते रीना? नो सर, कर सकते हैं ना, बिल्कुल Yes, कर sir. सकते हैं आप। बल्कि हर पेज को हम एक एडवाइस करते हैं अपने बच्चों को भी, आपको भी एडवाइस करेंगे भी। एक क्वेश्चन, एक आंसर, एक पेज, फिर उस पेज को छोड़ दीजिए। जब आप उसको धीरे धीरे आप उसे टैकल करते हैं, फिर आपके यहाँ पे प्रोफेसर हैं, आपके डायरेक्टर सर हैं, उनसे आप कंसल्ट कीजिए, सर क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, क्या मैं ये आंसर इस तरह से दे पा, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं करेक्शन होगी। और करेक्शन से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं सही सही दिशा में जा रही हूँ। तो प्रिपरेशन विल हेल्प यू काम डाउन द नर्वसनेस। अब क्योंकि आप पहली बार आप इंटरव्यूअर को फेस कर रहे हैं तो नर्वसनेस होना जाहिर सी बात है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की हो छोटे छोटे ग्रुप में, 4 लोगों के ग्रुप में, 5 लोगों के ग्रुप में, और सिर्फ इसमें कि हर एक को हेल्प हो जाए, कभी आप इंटरव्यूअर बने, कभी आप इंटरव्यूई बने, कभी आप ऑब्जर्वर बने, तो आप अपने अपने रोल ले लीजिए। तो इस तरह से आप अपने नर्वसनेस को थोड़ा सा अरेस्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप इंटरव्यू देना शुरू करेंगे 1 2 3, आपकी नर्वसनेस भी चली जाएगी। आपको जान के हैरानी हुई, सर ने मुझे इंटरव्यू एक्सपर्ट बताया, बट जब मैं होटल मैनेजमेंट मैंने पास आउट किया था तो मेरे पास नौकरी नहीं थी। पहली बात तो उस समय क्या था कि 2000 का टाइम था, सन 2000 का, जिस समय की रिसेशन का टाइम था, और सिर्फ 10 कंपनियां हमारे कॉलेज में आई। तो उसके बाद हम लोग दिल्ली आ गए और हम लोग बहुत हंट किया नौकरी के लिए। उसके बाद फाइनली हमें समझ में आया कि इंटरव्यू को साधना एक बहुत बड़ी कला है, और उस कला की भी सिंपल सा है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ऑन दोज 10 15 20 क्वेश्चंस व्हिच आर ऑलवेज आस्क्ड। तो ये एक स्टार्टअप हो सकता है रीना, या सबके लिए, कि आप इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है Thank you, रीना? sir. Yes, sir. Thank you, sir. हाँ, वेलकम। और कोई क्वेश्चन है किसी को? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून निखत, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग किसी इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं और अगर इंटरव्यू जो ले रहे हैं हम लोग से, वो अगर हम लोग के वीकनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करे तो हम लोग किस तरह आंसर देंगे उसको? दोबारा बोलिएगा, लाइन में समझा नहीं, क्या करें? सर अगर इंटरव्यूअर जो है वो हम लोग से क्वेश्चन करते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योर वीकनेस, तो उस समय हम लोग को किस तरह का आंसर देना चाहिए? हाँ हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, स्ट्रेंथ तो सबको पता है, लेकिन वीकनेस नहीं पता होती है। तो वीकनेस के लिए क्या होता है कि वीकनेस ऐसी हो जिसपे कि आप काम कर रहे हैं, और वीकनेस एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए। यानी कि वो मेरी, मान लीजिए आपने बोला मैं इमोशनल हूँ, जैसे बोला आपने इमोशनल, सबको पता लड़कियां इमोशनल होती हैं, तो वो क्यों ले जाएगा आपको, है ना? Yes. तो थोड़ा सा स्मार्टली आप अपनी ये वीकनेस देखिए जिसपे कि आप काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं कि हंसते हुए अगर आप बोल सके तो, आई स्लीप अलॉट, ये मेरी वीकनेस है। देखिए आपके आपके चेहरे पे स्माइल आई, अगर यही स्माइल आपके इंटरव्यू के चेहरे पे आई तो आपका काम हो गया खत्म, क्योंकि एक ऐसा डिफिकल्ट सवाल आपने बहुत आसानी से झेल लिया। दूसरा, आप बोल सकते हैं, मान लीजिए आपने बोला सर मैं कंसंट्रेट करने में थोड़ा सा मुझे इशू है, जिसके लिए मैं मेडिटेशन का यूज कर रही हूँ। तो आपने बताया कि मैं, जो आप जनरल होता है कंसंट्रेशन किसी किसी की आज की डेट में तो है ही नहीं, बिल्कुल व्हाट्सएप कर रहे हैं, कभी फेसबुक, कभी कुछ कर रहे हैं, तो एकदम नॉर्मल सी बात है। और इस पे आप क्या काम कर रहे हैं? तो मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं कंसल्ट कर रही हूँ बुक्स को, मैं गुरुज की कोई भी आप किताब अगर आप पढ़ रही हैं, तो आप जितना अपनी वीकनेस को ओवरकम करने की इच्छा बताएंगे या उसका प्रोसेस बताएंगे, आपकी वीकनेस नेगेटिव नहीं होगी, वो चाहे जो मर्जी वीकनेस हो। आप बोल सकती हैं, अगर आप खुल के आप बोलना चाहें ना, सामने सामने चेहरा आंख से आंख मिला के, सर कम्युनिकेशन स्किल इज माय वीकनेस, तो मैं बोलूंगा यस यू आर राइट। बट आप यही नहीं बोलेंगे, आप ये बोलेंगे मैं उसे कैसे ओवरकम कर रही हूँ। आई एम रीडिंग इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश सीरीज देख रही हूँ, या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करती हूँ, मैं डायरी राइटिंग कर, कुछ भी जो आप उस पर काम कर रही हैं। तो जब आप उस पर काम कर रही हैं तो आपकी वो वीकनेस थोड़ी थोड़ी खत्म हो रही है, और ये दिखाता है आपके अंदर एक लर्निंग एबिलिटी, सीखने की इच्छा। वीकनेस का क्वेश्चन वो इसलिए देते हैं कि क्या आप अपने आप को एनालाइज कर पा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या आप में वो सीखने की इच्छा है इस वीकनेस को, क्योंकि हर इंसान में वीकनेस होती है, कोई इंसान बिना वीकनेस के नहीं बना, ध्यान करिएगा। जो आपसे इंटरव्यू पूछ भी रहे ना, उसके अंदर भी 100 वीकनेस होंगी, लेकिन वो बोलेगा नहीं नहीं आई एम ऑल राइट, मेरे में भी है। बट हम एक्सपीरियंस थोड़े से हो चुके हैं, और हम आपको बता रहे हैं कि जब आप वीकनेस की बातें, घबराना की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अपनी वीकनेस को पहले डिफाइन कीजिए कि मुझे बोलना क्या है, मुझे कौन सी वीकनेस को लेके चलना है, ऐसी वीकनेस जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, काम कर रही हूँ।
राइट Yes, sir. निखत? Yes, sir. ठीक है, Thank you, sir. ओके, थैंक यू। सो आगे आगे बढ़े या कोई और क्वेश्चन है किसी के पास? तनिमा महातो, यू हैव एनी क्वेश्चन? आप बहुत ध्यान सुन रही हैं। तनिमा महातो, Sir, I have a question. अच्छा बताइए। रानी रश्मि बताइए। Yes, no, sir. ओके ओके, रानी बताइए प्लीज। सर यस सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि इंटरव्यूअर पूछे सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में, तो हमें किस तरह का आंसर देना चाहिए? देखिए, जब आप, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जब आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं और आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं एज पर कंपनी नॉर्म्स। आप तभी अपने सैलरी को नेगोशिएट कर सकते हैं जब आपके पास ऑलरेडी एक सैलरी होती है। ये बिल्कुल जनरल रूल ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो जब आप पहली आप नौकरी आप पकड़ रहे होते हैं तो Yes, इट्स तो आप ये बोल सकते हैं, आप एक लाइन लिख सकते हैं अपने लिए भी कि सैलरी इज नॉट द कंस्ट्रेंट फॉर मी, आई वांट टू जॉइन अ एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक यू। क्या बोला मैंने? सैलरी, मैं आप चैट बॉक्स में हल्का से लिख देता हूँ। yes, sir. चैट, सैलरी इज नॉट द कंस्ट्रेंट फॉर मी, स्पेलिंग का गड़बड़ तो देख लेना भाई। कंस्ट्रेंट फॉर मी, बट आई वांट टू जॉइन एन एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक योर्स। अब क्या है, ये मैंने आपको एक लाइन दे दी, थोड़ा स्पेलिंग में इधर उधर देख लीजिएगा प्लीज। तो ये इसमें आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं कि सर सैलरी के लिए मैं काम नहीं कर रही, मैं काम कर रही हूँ अपने पैशन के लिए। मेरा पैशन है मुझे शेफ बनना है, मेरा पैशन है मुझे सीखना है। तो जो वो क्वेश्चन आपको अगर हम बात करें, आपको फंसा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि यार सैलरी की बात करती पता नहीं मैं कैसे, तो सैलरी की बात को साइड करो कि सैलरी इज नॉट द कंस्ट्रेंट, अभी मुझे सीखना है। अगर मेरे को काम आएगा या मेरा जैसे जैसे मैं आगे जिंदगी में बढ़ूंगी आगे, तो सैलरी मिलेगी, पैसा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो दैट शोज योर कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। तो इस तरह से इस चीज को आप बढ़ा सकते हैं। इसमें और भी 2-3 लाइन आप ऐड कर सकते हैं कि मेरा पैशन है या मैं ये सीखना चाहती हूँ, और उसमें आप ऐड भी कर सकते हैं कि सर एक्चुअली मेरा एक्सपर्टीज एरिया ये है, तो वहां पे आप ऐड भी कर सकते हैं वो लाइन, वहां पे कहीं ना कहीं आप उसे बेटर बना सकते हैं, ठीक है। Yes, Ani? thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Okay, so now let me take you to a quiz, okay? Because general knowledge is something that needs to be brushed up by you. तो rather than saying कि भाई जनरल नॉलेज ऐसे हो वैसे हो, हम लोग एक क्विज ही खेल लेते हैं। क्या क्या बोलते हैं सब लोग? कौन कौन क्विज खेलने को तैयार है? जरा मुझे चैट बॉक्स में यस करके दिखाएं जरा फटाफट। 1 2 3 4 बोल के नहीं, देख Yes, के sir. चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ फटाफट। या निकट इज वेरी क्विक। आरती, सीमा, अंजलि, नरगिस, या एवरीबॉडी शुड बी क्विक। यहाँ देखेंगे ना, लक्ष्मी, खुशबू, सुमैया, सती, वाह, एवरीबॉडी इज वेरी क्विक ना। अब हो गया, अब आ गए चैप्टर सारे। गुड गुड गुड, एक्सीलेंट। सो नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन फॉर द क्विज ऑन द स्टेट ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ झारखंड। या ममता, थैंक यू थैंक यू। So, Nargis Khatun, can you see the screen? कुछ दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? Yes, sir. No, sir. White बस कुछ भी नहीं। Yes, sir. Okay. Slide is visible, sir. Slide is visible. Okay. So, सौरभ सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक, Yes, कि- sir. क्योंकि मैं यहाँ पे क्विज कर रहा हूँ, आप ये थोड़ा सा मॉनिटर करें कौन फास्टेस्ट है, जिसे हम Okay. कहते हैं ना फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला। Right, right. हल्का सा आप देखिए कि कौन फास्ट चल रहा है, हम उसको भी देखेंगे कि हाउ एवरीबॉडी इज एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस, ठीक है? Right, right. Oh yeah. So let's just begin. Sir, excuse me, sir. Yes, बताइए। So we have to answer in the chat box. यस चैट बॉक्स में कर सकते हैं आप आंसर। अगर चैट बॉक्स में लग रहा है कि देर हो रही है तो आप अनम्यूट कर, लेकिन अनम्यूट मैं बोलूंगा नहीं, बिकॉज फिर एवरीबॉडी स्पीक्स अप तो जंबल हो जाएगा। आप चैट बॉक्स में लिखिए, और सौरभ सर उसको थोड़ा सा मॉनिटर कर रहे हैं। अगर Okay, sir, शाकिर okay. सर भी हैं थोड़ा सा, तो वो भी कर सकते हैं। आई मीन एवरीबॉडी कैन कंट्रीब्यूट, राइट शाकिर सर? हाँ, yes, sir. He is listening. Yes, fine. I know he's a very busy man. Okay. So 10 questions in the state of Jharkhand. The first question coming up right now.
Who is the Chief Minister of Jharkhand? Any answers? Any answer? फटाफट फटाफट कौन बता रहा है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। मैं भी चैट बॉक्स से बोल लेता हूँ। हेमंत सोरेन। हाँ, हेमंत सोरेन. So I can see yes, everybody is very right. हेमंत सोरेन. So that was a simple one. चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. आपकी जानकारी कैसी है? How many tribes inhabit the state of Jharkhand? Any answers? These are the options. 4 options. Anyone? आप ही के स्टेट के बारे में आप ही से जान रहे हैं. अरे भाई कहाँ रह गए सब लोग? 28. कहाँ रह गए सब लोग? टाइप करो चैट बॉक्स में, टाइप करो चैट बॉक्स में, टाइप आपको चैट में टाइप करना है सर, टाइप करना है चैट बॉक्स में. भाई ऐसा मत करो, कॉपी मत करो, कोई अपना दिमाग लगाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ. So you'll be surprised to know that there are 32 tribes in inhabiting Jharkhand, not 28. Please brush up on your general knowledge. Okay? The proof is from this site. Tribals in Jharkhand, jhpolice.gov.in. This is my source. So there are 32 tribes in Jharkhand. Okay? Yes, sir. Next question. Who was appointed as Advocate General of Jharkhand? The options are Rajiv Ranjan, Vijay Narayan, Baldev Raj Mahajan, or Nilay Ananda Datta. What is the answer? What is the answer? Any? अरे सब सो गए क्या? सबके सब सो गए? कोई तो जगह होगा. What is the answer? What is the answer? Tell me quickly. अच्छा कोई बताओ एडवोकेट जनरल होता कौन है? रीना कुमारी, यू आर वेरी स्माइलिंग. बताइए आपको कुछ पता है एडवोकेट जनरल? देखिए राजीव रंजन बोला, सुनीता टुडू ने. वेरी नाइस. नाम नोट कर लीजिए इनका, फर्स्ट हो गए. तो देखिए ऐसे ही हम लोग पहले सिंपल करके कंफर्टेबल करते हैं, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट आते हैं. यू आर राइट. राजीव रंजन इज द एडवोकेट जनरल ऑफ झारखंड राइट नाउ, एंड ही इज द पर्सन हु रिप्रेजेंट्स झारखंड एज एंड व्हेन कोई उन पे कोर्ट केस करता है. ठीक है? So from the public side, Rajiv Ranjan defends. Next question then. Which of the following tribes of Jharkhand are said to be descendants of Kshatriya lineage known as Chandravanshi? आपके ऑप्शंस हैं बिरजिया, चेरो, बायगा और मुंडा. Let's see. जल्दी बोलो भाई, गूगल मत करो. अच्छा मुंडा बोला नरगिस ने. ओके पूनम मुंडा बोल रही हैं. ओके आगे बढ़ते रहिए. सदाब नहीं, बिरजिया, बैगा, मुंडा. मुंडा. सब आंसर करें. नहीं मुंडा नहीं है आंसर. मुंडा नहीं, बिरजिया भी नहीं है. सो मैं आंसर दे रहा हूँ आपको आंसर. सौरभ सर मैं आंसर दे रहा हूँ. ठीक है? हाँ चेरो आया. अंजिला नायक, वेरी नाइस. डाउन हर नेम. Anjula Naik, she is right. It's a Chero tribe. Chero tribe, which is supposed to be a Kshatriya lineage and also known as Chandravanshi. Okay? चलिए अगला क्वेश्चन. झारखंड, ये सिंपल होना चाहिए, वैसे इसका ऑप्शन देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. झारखंड ऑब्जर्व्स इट्स फाउंडेशन डे ऑन November 15. The state was carved out of Bihar in which year? किस सन में वो अलग हुआ था बिहार से? सन 2001, 2002. फर्स्ट आया नरगिस खातून से. वेरी नाइस. शी इज वेरी गुड. सन 2000. लेकिन सबको मालूम है. वेरी नाइस. सन 2000 में वो स्टेट ऑफ बिहार से कार्व्ड आउट हुआ. गुड. In 2020, which art of Jharkhand received the geographical indication tag? ये मैं बताऊंगा क्या मतलब होता है, लेकिन ये एक तरह का आपको उस आर्ट को कहीं ना कहीं मतलब की तवज्जो दी गई है, उसको इंपॉर्टेंस दी गई है, तो इसलिए उसको ज्योग्राफी इंडिकेशन टैग मिलता है. इन 4 ऑप्शन में कौन सा है? जल्दी देखते हैं आप. यहाँ पे जदोपातिया पेंटिंग्स, कुर्मी आर्ट, बिहोरर, भूया आर्ट, सोराई एंड कुंवर पेंटिंग. कौन सा? कुर्मी सेज पूजा कुमारी साहू. यस. व्हाट अबाउट द रेस्ट? कुर्मी आर्ट. अच्छा कुर्मी आर्ट ही सब लोग बोल रहे हैं. प्रभा, प्रतिभा, सदाब भी कुर्मी आर्ट. एनीबॉडी हैज एनी आइडिया? एनी
भाई रांची का खास है भाई ये. Shorai says Sonu Kumari. Number 1. Sonu Kumari, you are right. The answer is Sorai and Khovar painting. This is a mural art from Hazaribagh. तो ये एक तरह की ज्योग्राफिक इंडिकेशन टैग है. ये आंसर आपका सोराई एंड खोवर पेंटिंग. ये थोड़ा जीके की बात है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है साइन होता है दैट हैव स्पेसिफाइड ज्योग्राफिकल ओरिजिन एंड पोजेस क्वालिटीज और रेपुटेशन. तो उसको उस सोराई जो है उसको आर्ट को आइडेंटिफाई कर लिया गया और उसको एक तरह की वो दिया गया है, अहमियत दी गई है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. रेडियो सुनते हैं आप लोग? रेडियो सुनते हैं? Yes, sir. तो ये रेडियो खांची किस यूनिवर्सिटी ने शुरू किया? किस यूनिवर्सिटी शुरू किया रेडियो खांची? Which one? Yes, come on, quickly. कौन सी यूनिवर्सिटी ने? ये इतना डिफिकल्ट नहीं, रेडियो वाला क्वेश्चन तो आना चाहिए आपको. रेडियो खांची 90.4. रांची यूनिवर्सिटी. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. द आंसर इज रांची यूनिवर्सिटी. प्लीज नोट डाउन. रीना कुमारी, आपने बोला ना? यस सर. हाँ, वेरी नाइस. क्वेश्चन नंबर 8. एक चीज है हमारे यहाँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत. Which state is paired with the state of Jharkhand? एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर हम लोग एक स्टेट को दूसरे स्टेट से पेयर करा है कि वहाँ की क्वालिटी, मतलब कि जो भी आपका रिचुअल्स हैं, कल्चर है, वो आप एक्सचेंज कर सकें. तो ये 4 ऑप्शन आपके गोवा, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब. हरियाणा. यस. पंजाब. पंजाब. हरियाणा. सिक्किम, हरियाणा, पंजाब. अच्छा, अंजला नायक को कर लीजिए. अंजला नायक इज राइट. इट इज द आंसर इज गोवा. आंसर इज गोवा. वेरी नाइस, एक्सीलेंट. क्वेश्चन नंबर 9. हु इज दीपिका कुमारी महातो? इसका आंसर तो सब लोग को देना चाहिए, सब लोग को. हु इज दीपिका कुमारी महातो? सर वर्ल्ड नंबर 1. उसमें लिख दो. नरगिस खातून से आर्चरी. शी इज राइट. She is number 1 archer right now. She has won 3 gold medals in Paris archery championships right now. और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है. सन 2012 के बाद अभी वो जाके नंबर 1 दोबारा से हुई है. लास्ट क्वेश्चन कमिंग अप. ये कौन सा मोबाइल ऐप है? द झारखंड गवर्नमेंट लॉन्चेस विच मोबाइल ऐप टू इशू ई-पासेस टू एवरीवन? कोपल, प्रज्ञाम, उमंग या कुर्मा? Any answers? Sir, it's Umang. Sir, chat box में मैंने डाल दिया. उमंग. सर उमंग. उमंग, तरंग, ठीक है. प्रज्ञाम. प्रज्ञाम से अंजिला नायक. Very nice, GK. Very good. It's Pragyam. The answer is Pragyam. Okay, correct answer is Pragyam mobile app. So let's quickly do a stop share here, and let's open your cameras and let's clap. All of us clap for ourselves. 1, 2. Please open your cameras. Open your cameras because everybody has now played a quiz. So we'll do a 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Everybody. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Very nice. Saurabh sir, who is on? I think I saw Nargesh doing well. Anjala, I think a couple of questions she has given. Sir, Angela has given 2 questions correct. Okay, very nice. And Nargesh also, I think, has given some answers correct. Nargesh and Angela, yes. Yeah. So, देखिए, thank you, Saurabh sir. So the point I want to make is, I could have said this thing in one line, saying, you know, your general knowledge needs to be perfect. But how perfect? So you should actually brush up on your general knowledge, because this is something which will give you a lot of confidence. From the state of Jharkhand itself, try to have the questions on politics, on sports, on maybe cinema अगर वहाँ अच्छा है तो, या फिर cuisine part. All these things will actually help you become more confident, and it shows in your eyes in the way you are in front of the interview. Right? Okay. So now let me go to the third part quickly.
which will be on my body language part. So if anybody has any question, they can right now ask till the time I am doing a share screen. I hope you are enjoying the session. If you are enjoying the session, say yes on the chat box. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Thank you very much. Yes, Thank sir. you. Yes, Thank you. sir. Yes, Sir, sir. on behalf of the students, I would like Yes, to sir. ask one question from you. Yes, sir. बताइए. On based on the observations, मैं बता रहा हूँ ये. There is a gap between the students when they are told to ask the questions after any session, maybe after any class or any session. अभी भी वो झिझक है. Only 3-4 students are coming up in front, and rest are waiting. Number of times it has been explained the importance and value of asking questions, and which time when you have got the opportunity you should ask the questions, clear your doubts if any. लेकिन on the spot जैसे होता है कई बार online sessions हो सर, या even offline sessions में भी कभी-कभी, but online में थोड़ा सा ज्यादा. Hardly they come up to ask the questions, and later they have their queries or confusions. तब उस समय थोड़ा सा shaky feel करते हैं. तो how they should deal it? बिल्कुल. So इसका मैं आंसर मैं एक छोटी सी लाइन में देना चाहूंगा, बिकॉज स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं और आप भी यहाँ पे हैं. सो मेरे पास एक लाइन है. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड. 3 तरह के लोग दुनिया में होते हैं. ठीक है जी. पहले होते हैं हु मेक थिंग्स हैपन, यानी कि वो करके दिखाते हैं. सेकंड होते हैं हु वॉच थिंग्स हैपन, जो देखते हैं कि क्या हो रहा है. आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि तीसरी कैटेगरी क्या होती है, जल्दी से. मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप सुनते रहिए और आपके पास चैट बॉक्स में लिखने का है. पहला है दोज हु मेक थिंग्स हैपन, दूसरा है दोज हु वॉच थिंग्स हैपन. तीसरी कैटेगरी क्या होगी वो लिख के बताइए. कौन सी है तीसरी कैटेगरी? आप वर्ड में लिख सकते हैं, वर्ड में, या आप लिख सकते हैं किसी लाइन में, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो. आप हिंदी में लिखना चाहें, इंग्लिश में लिखना चाहें, आप अपनी लैंग्वेज में लिखें, बाद में एक्सप्लेन करते हैं, आपके ऊपर है. बट लिखना सबको है, सबको लिखना है. ये ऑर्डर है, यहाँ से दिल्ली से ऑर्डर जा रहा है आपको, हाई कोर्ट से सीधा. ठीक है. अरे सब सो गए क्या? निकत बोलो भाई. सीमा कुमारी, रीना जी, तनीमा महतो, जो दूसरों के करने के बाद करते हैं. अच्छा जी, वाह. ये नरगिस जी बहुत ही एक्टिव है, बहुत अच्छा लगा मुझे. और निखत ने बोला है दोज हु थिंक लेट इट बी एज इट इज. ओके. तीसरा दोज हु डू नथिंग. सुभद्रा, आई एम विद यू. आपने कहाँ है आपका कैमरा? मेरे को आप दिख नहीं रही है. सुभद्रा आप वीडियो ऑन करिए. हाँ, वेरी गुड. जो करते कुछ नहीं, बहुत बढ़िया. नथिंग की स्पेलिंग बड़ी यूनिक है आपकी. जो देख के करते हैं फिर काम करते हैं, जो हो रहा है उसे होने देते हैं. बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. चलिए, बाकी के कहाँ हैं जो सो रहे लोग? जाग जाओ. तीसरा बोलने ही करने दो. अच्छा जी, तीसरा बोले करने दो. अच्छा जी, करने दो. ठीक है. सुनते हैं, देखते हैं, बोलते नहीं है. वाह, जो होगा देखा जाए. मैं चाहूंगा कोई एक बच्चा इनिशिएटिव लेके सारे आंसर नोट डाउन कर ले प्लीज. कोई बच्चा. सौरभ सर आप कर लो, या तो कैसे भी. मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये आंसर आपके लिए बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि आप खुद लिख रहे हो. ये मैं आपको कुछ समझाएगा. सौरभ सर ने क्वेश्चन पूछा, मैं आंसर करने वाला हूँ, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ आप क्या सोच रहे हो. तो देखिए, आपके सीमा कुमारी कहती है जो दूसरों को देख के करते हैं, जो हो रहा था होने देते हैं. प्रतिभा कहती है दूसरे लोगों की वेट करते हैं. खुशबू कुमारी कह रही है जो हो रहा है होने देते हैं. ठीक है. तो तीसरी कैटेगरी में दोबारा से लाइन बोलता हूँ. There are 3 kinds of people in this world: those who make things happen, those who watch things happen, and third is those who wonder what happened. अरे भाई, सौरभ सर आए. सौरभ सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत मजा आया, इतनी अच्छी बातें, मगर पता नहीं समझ में कुछ नहीं आया. तो ये वो कैटेगरी है जो कि बोलती नहीं है. तो अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आना चाहते हैं और इस कैटेगरी में आप अपने आप को कभी जिंदगी में रखना नहीं चाहते हैं, तो बोलना शुरू कर दीजिए. आप बोलिए, लिखिए, अपनी बात को रखिए, तभी आपकी जो टीचिंग, जो आपके शाकिर सर, सौरभ सर, अतुल सर है ना नाम उनका, वो जो करना चाहते हैं आप पे इफेक्टिव होगा. 50% आपके हाथ में, ध्यान रखिएगा अपना करियर, 85% उनके पास है. तो ये जो लाइनें आपने लिखी हैं, इसको ध्यान करिएगा और इसमें जाइएगा मत. So please do not be in a category those who wonder what happened. This is the answer for Saurabh sir.
for whatever my Thank you, experience sir. says Thank you very much. कि आपको जो है इस कैटेगरी में कभी नहीं रहना है। अगर आप रह गए तो आप कभी भी अपने आंसर्स नहीं जा पाएंगे। तभी कभी पूछिए, नहीं समझ क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, कोई बोलेगा ग्रामर के, अरे क्यों पूछ लिया करके, अरे जाने दो, वो उसके घर की बात है, ये मेरे घर की बात है, मुझे सीखना है ना, नौकरी मुझे मिल रही है ना। तो जब आप उसको सीखने की तमन्ना रखते हैं ना, तब आपको एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। ध्यान करिएगा, एक लाइन अभी दोबारा से मेरे को एक लाइन ध्यान आ रही है, तो मैं बोल देता हूँ। When the student is ready, the guru appears. क्या मतलब है उसका? Anybody? When the student is ready, the guru appears. Yes, जब sir. स्टूडेंट तैयार होता है, हाँ यस हाँ, सर, निकट बताइए। जब स्टूडेंट तैयार होता है, हाँ सर, हम नरगिस, नरगिस, हाँ नरगिस बताइए। सर, जब स्टूडेंट तैयार होता है तो ही टीचर उसे मतलब अपेयर करता है, देखता है। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही गलत है। नहीं, डोंट माइंड, दिस इज एक लर्निंग कर्व है। आप, मैं सबसे अप्रिशिएट करूंगा नरगिस, आप इतना अच्छे से करती हैं, आपकी एनर्जी मेरे को लगता है सब में जानी चाहिए। 2-4 को अपने को इन्फेक्ट कर दो अपने एनर्जी से, क्योंकि आप में जो एनर्जी है, जो जज्बा है ना, वो सब में होना चाहिए। सीमा इतनी अच्छे सुन रही है, सीमा कुमारी, मैं चाहता हूँ वही बोले। तो सीमा, आप क्या बोलना चाहेंगी? When the student is ready, the guru appears, इसका क्या मतलब है? सर स्टूडेंट जब तैयार होते हैं तो वो आगे जाके और अच्छे से कर सकें। बिल्कुल, आप सही जा रहे हैं। इवन नरगिस भी काफी हद तक ठीक थी, लेकिन क्या है, आपको गुरु कहीं भी मिल जाता है। आप अगर तैयार हैं तो आपको गुरु कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप तैयार हैं तो गुरु कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं। वो क्लास में आएगा, अपनी बातें करके चला जाएगा। इसीलिए आपको तैयार होना बहुत जरूरी है लर्निंग को लेने के लिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड हियर, पीयूष सर, हाँ जो बताइए। आपने एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस एग्जांपल देके यहाँ पर बताया उनको, इन आवर क्लासेस, जब लॉकडाउन से पहले वो लोग क्लास में फिजिकली थे, नंबर ऑफ टाइम्स मैंने एक दूसरे सेंटेंस का हेल्प लेके आपके इसी मैसेज को बताने की कोशिश उनको की है। एंड आई यूज्ड टू टेल देम क्वाइट ऑफन कि इफ यू हैव द नीड, देन वी हैव द नॉलेज फॉर यू। बिल्कुल सही, तो आपका मैसेज कुछ इस तरह से रिलेट कर पा रहा हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम सही बात बोली आपने। वो नीड ही वो ग्रीड बढ़ाती है, ठीक है ना, वो नीड ही वो ग्रीड बढ़ाती है, जिसके बेसिस पे आपकी जो है ना सीढ़ी बनती है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉडी लैंग्वेज पे थोड़े से हम बात कर लेते हैं। मीनवाइल इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन, वो फिर इसके बाद ले लेंगे। ठीक है जी, एक मिनट। So I hope my screen is visible. Seema? Yes sir, visible sir. Yes 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 sir. Thank you. You can do a thumbs up or thumbs up. This is also good body language. Everybody can do a thumbs up. Yes sir, दिख रहा है मेरे को। कैसे करेंगे? Thumbs up. तो बॉडी लैंग्वेज क्या है? स्टूडेंट, बॉडी लैंग्वेज का जो मतलब है बेसिकली ये है दो चीजों का पार्ट, जेस्चर है और पोस्चर है। और ये हम हमेशा करते रहते हैं, हमेशा इस बॉडी लैंग्वेज को हम बोलते रहते हैं। और ये सबसे बड़ी लैंग्वेज है, सबसे बड़ा इफेक्टिव लैंग्वेज, और इसीलिए इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है या कई बार नहीं भी होता। तो जेस्चर क्या है? मूवमेंट ऑफ हैंड, आर्म्स, बॉडी, हेड, फेस, एक्सप्रेशंस, आईज। द बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर पता है आपको एक्टिंग में, हालांकि मैं एक्टिंग का गुरु नहीं हूँ, नहीं उसको, लेकिन एक्टिंग के अंदर आईज इज समथिंग विच इज वेरी मच नीडेड, आईज की मूवमेंट। और जो एक्टर आईज की मूवमेंट नहीं करता है वो नहीं चल पाता। तो वो एक्सप्रेशंस बहुत जरूरी हैं, वो इफेक्टिवनेस आईज के थ्रू बताना। तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है। अ पोस्चर टिपिकली रेफर्स टू द वे अ पर्सन सिट्स, स्टैंड्स, वॉक्स एटसेट्रा। तो आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, अपने घर में एक भारी सी किताब लीजिए, भारी सी किताब लेके अपने सर के ऊपर रखिए और कम से कम 5 से 10 स्टेप चलने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसको नहीं गिराए बिना चल पा रहे हैं इनिशियली, तो आपकी वॉक ठीक है, आप बैलेंस चलते हैं। अगर आपकी 5 से 10 स्टेप में वो गिर रहा है, आपको अपना वॉक थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। हो सकता है आप वॉक में पैर को थोड़ा सा घिसट रहे हैं,
या फिर आपकी बैलेंस वॉक नहीं है। तो इस तरह से हम अपने को एक डिफाइनिंग फैक्टर है, ऐसा नहीं कि खाली यही एक फैक्टर है जिसको कि आप कह सकते हैं कि पोस्चर की बात होगी। आगे 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 बढ़ते हैं। Postures and body movements are unconscious forms of expressions and therefore they have a language of their own. इसीलिए इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज में आपका कंट्रोल है तो आप उसको हमेशा यूज कर सकते हैं। अगर अनकंट्रोलेबल है तो आप कई बार उसका खामियाजा भुगत सकते हैं। जैसे कि आपका पैर बहुत मूव करता है बैठे टाइम, तो इसका मतलब है कि आप बहुत नर्वस हैं, बहुत एजी हैं, तो उसको कंट्रोल कीजिए। ठीक है, आपकी आई मूवमेंट, आप ज्यादा आंख बहुत झपका रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं बार बार, तो इसका भी मतलब है कि जो है ना आपकी आई की आपकी मूवमेंट आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। We are unaware of our gestures when body movements most of the time, but other people can notice our gestures and movements if they pay attention to and what they mean. तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आपके दूसरा जो देख रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है। कैसे बैठना है, कैसे हाथ को यूज करना है, कैसे पैर को यूज करना है, इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेइंग अटेंशन इज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ कन्वर्सेशन। कई बार हमें इसलिए बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना जरूरी है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज के अलावा अगर हम इंटरव्यूअर की बॉडी लैंग्वेज समझ लें तो हम अपने इंटरव्यूअर को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। हम अब एक होता है एक होता है इंटरव्यू, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो कई बार अगर हम रट के आए एक आंसर, हमें बताना ही है, आज तो मैं सबको बता के जाऊंगी चाहे जो हो जाए, आज तो नो एवरीथिंग आई विल टेल यू, तो वहां पे आप देख नहीं रहे कि वो क्या क्या कंडीशन है। आपका इंटरव्यू सुबह हो रहा है, दिन हो रहा है, शाम हो रहा है। एक मिनट सर। तो आप देख ही नहीं पाएंगे और आप अपना हार्डवर्क करेंगे, बाद में आपको इंटरव्यू जो है वो शायद आपको सिलेक्ट करे ना करे, लेकिन अगर आप उसकी बॉडी मूवमेंट को देख रहे हैं, वो कैसे अपना हाथ रख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा कुछ चीजें जो कि एक इंटरव्यू में आप देख के अपना एक तरफ इंटरव्यू मोड़ सकते हैं। Sir, you need some break. Sorry to interrupt. You need some break. No break. 2 minutes. 2 minutes. You can relax. ब्रेक लेके क्या करना बताओ? Right. Okay, please continue. अभी फ्लो में चल रहा है, बच्चे भी ब्रेक की जरूरत नहीं है। क्या खाना होना खाना ना क्या? लंच टाइम तो नहीं हुआ ना? No. अरे ठीक है सर, चलिए। You can continue till 6 o'clock. There no issue. ठीक है। So an important thing to note here is that body language applies not only to the interviewer but also to the interview. तो उन पे भी एप्लीकेबल है, आप पे भी एप्लीकेबल है, और ये सारे टाइम आपकी बॉडी मूवमेंट आपका चलता रहेगा। So before we go further to understand the different type of body language, gestures and postures, let's understand some myths or something that you need to learn. कुछ चीजें जो आपको सीखना बहुत जरूरी है। So पहला है कि बॉडी लैंग्वेज इज एन इंपॉर्टेंट डिसाइसिव फैक्टर व्हेन ट्रांसमिटिंग अ मैसेज। तो ये कई बारी आपको लगता हो कि नहीं है, मेरी बात से बात बन जाएगी, बॉडी लैंग्वेज की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन वो बहुत जरूरी एलिमेंट है आपके इंटरव्यू के दौरान। मूवमेंट इज द ओरिजिनल एंड मोस्ट इंटेंस मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ विल। आप जब अपने को मूव करते हैं इंटरव्यू में, आप कैसे बैठते हैं, इवन आप आईज की मूवमेंट करते हैं, आप जब वो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। आप उनको देख के सोच रहे हैं या आप जल्दी से कहते हैं सर आई डोंट नो बट आई हैव अ नॉलेज इन दिस एरिया, इस तरह की बात अगर आपसे कर पा रहे हैं तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव दिखा रहे हैं। और यहाँ ऊपर देख रहे हैं, राइट देख रहे हैं, लेफ्ट सर पता नहीं सर, मैं तो गलती से आ गई यहाँ पे, आई डोंट नो सर, मुझे जबरदस्ती यहाँ भेज दिया गया है। सो इस तरह की अगर आप बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज में दिक्कत है। अ पर्सन कैन स्टॉप स्पीकिंग बट ही कैन नॉट स्टॉप कम्युनिकेटिंग विद हिज बॉडी। ठीक है, तो ये भी बात जानने की है। नॉन वर्बल सिंबल्स आर 4 times मोर इफेक्टिव देन वर्बल सिंबल्स। ठीक है, इसलिए गुड ओरेटर्स जो बोलते हैं, स्पीच देते हैं, गुड पॉलिटिशियन जो अच्छा कर रहे हैं, गुड एक्टर जो अच्छा कर रहे हैं, गुड सेलिब्रिटीज जो बढ़िया कर रहे हैं, दे आर वेरी गुड विद देयर नॉन वर्बल सिंबल्स। मे बी ड्रेसिंग सेंस में भी उसमें बात आ जाती है, बात चलने के तरीके बात आ जाती है, आवाज में आ जाती है, किसी भी चीज को लेके जो उनका पॉजिटिव एरिया है उस पर आपको वर्क करना है। आपको अपना भी डिफाइन करना है कि मैं कौन से बॉडी लैंग्वेज मेरा जो है जिसपे मुझे काम ज्यादा करना है, फेशियल पे काम ज्यादा करना है, या मुझे हैंड मूवमेंट पे करना है, मेरा हाथ नहीं है, या मेरा बॉडी लैंग्वेज जो मैं चलती हूँ, जैसे जिस भी चीज पे आपने काम करना है आप काम कीजिए, धीरे धीरे करके आप अपने बॉडी लैंग्वेज को ठीक करिए या उसे बेटर कीजिए। ठीक सबका ही होता है लगभग।
All individuals have some knowledge of vocabulary of body language. तो मेरी इस क्लास से पहले भी आपको नॉलेज थी, इसके बाद भी नॉलेज होगी, और इस नॉलेज हमेशा इनबिल्ट होती है हमारे में। इसीलिए हम कभी घर में कोई परेशान होता है तो हम पूछ लेते हैं, अरे लग रहा है आप कुछ परेशान लग रहा है, उसने कुछ बोला नहीं, और या फिर आज बड़ी हंसी आ रही है, हाँ बड़ा कौन सी पिक्चर देख के आई, बहुत बढ़िया है, मुझे भी बता। और या फिर आपने कोई गाना गुनगुना रहा है, अरे आजकल लग रहा है कि कुछ जो रोज से गाना चल रहे हैं, क्या बात है क्या बात है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको बॉडी लैंग्वेज की नॉलेज पहले से ही है। ठीक है, सिग्नल्स एमिट अनकॉन्शियसली ऑलवेज टेल द ट्रूथ। ये भी ध्यान रखिएगा, जब हम लोग अनकॉन्शियसली कुछ बात कर रहे होते हैं तो हम अपनी सच्चाई बता रहे होते हैं। इसीलिए इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज का महत्व बहुत ज्यादा है। जेस्चर्स आर डायरेक्ट एंड अनरिपीटेबल एक्सप्रेशंस ऑफ पर्सनालिटी। जिससे पर्सनालिटी में बताया था कि आपका थिंकिंग, आपका बिहेवियर और आपकी फीलिंग पे आपने काम करना है, वैसे जेस्चर्स आर एक्सप्रेशंस ऑफ योर पर्सनालिटी, हाउ एज अ पर्सन यू आर। सो आपको आपकी हैंड मूवमेंट, टू गिव यू एन एग्जांपल, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये स्टॉप शेयर कर रहा हूँ मैं। सर मुझे पिन कर दीजिएगा उस पर, जो है आपके स्पीकर व्यू पे कर दीजिएगा पिन करके, ताकि सब लोग देख पाए मैं जो कर रहा हूँ। सौरभ सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, so I hope everybody is able to see me. Yes, sir. Yes, sir. जैसे आपका hand, Yes, sir. क्विक वे इज, आपका जो जब आप बैठते हैं तो आपका हाथ यहाँ पे होगा, आपको बताते हैं यस आई वांट टू टेल समथिंग एंड देन द हैंड कम्स बैक, आई वांट टू टेल समथिंग देन द हैंड कम्स बैक। ये एक सिंपल सा हैंड मूवमेंट है जिसपे कि आप काम कर सकते हैं, जो आप कई बार देखेंगे कि जब आप एक इंटरव्यू प्रोसेस या एक एंकर के रोल में भी वो ये हाथ को ऐसे वैसे भी रखते हैं, सर आई वांट टू से समथिंग, यू नो आई वांट टू से। तो आपकी हैंड मूवमेंट शुड गो, यहाँ पे थोड़ा सा चले और फिर वापस आए, फिर यहाँ पे चले थोड़ा सा वापस आए। इस पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नो डाउट, एकदम से नहीं होगा ये, इट विल टेक सम टाइम। दूसरे जो आप काम कर सकते हैं, कोई भी चीज को आप बता रहे हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो आप छोटा सा, सर when I was a bit when I'm a bit small, you know, I was doing something and then I have, you know, gone to another level. So आप छोटे से बड़ा कुछ बता रहे हैं, आप छोटे से बड़ा कुछ बता रहे हैं, एक सिंपल वे में अपनी हैंड मूवमेंट को आप लोग यूज कर रहे हैं एंड विद द एक्सप्रेशंस। तो जब आप ये चीजें अपने वर्कआउट करते हैं, अपने हैंड मूवमेंट को वर्कआउट करते हैं, यू आर एबल टू बेटर रिप्रेजेंट योरसेल्फ। ठीक है, ओके, कमिंग बैक नाउ टू द पीपीटी। सो ये एक मैं तीनों को साथ में लेके चल रहा हूँ। नेवर बीन टू अ क्रॉस्ड आर्म्स व्हेन यू आर गिविंग योर, यू नो, ऐसे करके नहीं बैठना है। इसका मतलब है कि आप डिफेंसिव में, आप रिजर्व में, आप तो खुले नहीं है। तो कई बार आपको वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसमें आप रिलैक्स हो जाते हैं, आप ऐसे थोड़ा सा बैठ जाते हैं। थोड़ा सा मैं पीछे भी रहता हूँ, शायद आपको थोड़ा दिखे। तो ऐसे आप बैठ जाते हैं। ओपन आर्म्स एंड हैंड्स मींस दैट पर्सन इज ओपन एंड रिसेप्टिव। तो आपका अगर हाथ ओपन है, आप बात कर रहे हैं, अपने हाथ बार बार खोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एक लर्नेबल, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के स्टूडेंट हैं, जिसको कि वो एक पॉजिटिव तरह से ले सकते हैं। सिटिंग इन अ चेयर शेकिंग वन ऑफ द लेग्स, वो मैं दिखा नहीं सकता अभी, लेकिन आपका चेयर जो है वो आप यू शुड नॉट शेक दैट मच। इसका मतलब है कि आप नर्वस हैं, अनकंफर्टेबल है। विद द पाम ऑफ द हैंड होल्डिंग सपोर्टिंग चिन मींस इवैल्यूएटिंग। अगर आपका इंटरव्यूअर, अब एक बात यहाँ पे है, इंटरव्यूअर कैसे कर रहा है, अच्छा, तो इस टाइम ही इज इन 50-50 स्टेज, मैं इसको हायर करूं कि ना करूं। तो इस समय आपको ऐसा कुछ पॉजिटिव पॉइंट देना है कि जिससे कि वो हाथ यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाए और वो आपको देखने लगे। क्योंकि यहाँ तक जब तक है तब तक वो अभी तक सोच ही रहे, उनको मालूम नहीं है, बट वो आपको बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे में इंटरेस्टेड हूँ, मगर मुझे पक्का यकीन नहीं है। तो आपका कुछ, आप ऐसा कीजिए, कुछ ऐसी बात पॉजिटिव बताइए कि उनका हाथ यहाँ से लेकर और यहाँ पर आ जाए, और वो आपको फिर गौर से देखें, ताकि आपके अंदर वो इंटरेस्टेड पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी। लीनिंग बैक इन चेयर विद बोथ हैंड्स क्लैस्प्ड मींस इज इन एन एनालिटिकल मूड। तो क्या होता है कई बार ऐसे, हाँ बताइए थोड़ा सा, हाँ कहिए। तो इस समय वो ना सीरियस नहीं है इस समय, ठीक है, थोड़ा एनालिटिकल भी हो सकता है, बट यस अगर वो ऐसे सोच रहे अच्छा, तो फिर भी थोड़ा सा बात है। बट अगर वो देख रहे हैं हाँ, तो अभी वो थोड़ा शायद तंग आ चुके हैं, परेशान है, तो आपको उनको थोड़ा सा सही करना है। आपको अपनी इंपॉर्टेंट बात उस समय नहीं कहनी, क्योंकि वो सुन ही नहीं रहे उस समय। तो आपको तब बोलनी जबकि वो प्रॉपरली अपनी पोजीशन में आ जाए और अपनी बात को बोले। रबिंग और टचिंग नोज व्हेन आस्किंग क्वेश्चन मींस ही इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ।
तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल नॉट टू, सर मुझे ना पता नहीं सर, या फिर आप पीछे, सर आई डोंट नो, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि, तो जैसे आपने यहाँ हाथ रखा या आपने ऐसे करा या आपने किसी बॉडी अपने चेहरे पे टच करा और आप बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे टेक इट एज अनट्रू और लाई, तो ये नहीं करना है. Rubbing the back of the head or rubbing or touching the back of the neck means conversation is not really interesting. तो अगर यही इंटरव्यू कर रहा है कि अच्छा अच्छा और क्या बात है, ओके, इसका मतलब है conversation is not really going in your favor. At that point you need to do something, you know, वो फायर क्या कहना चाहिए, आप फायर फाइटिंग करनी है, मतलब कि आग लग गई है तो आप पानी फटाफट डालना, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है, बिकॉज वो इंटरेस्टेड बिल्कुल ही नहीं है. If he moves his body and sits with his feet and body pointing towards the door, means he wants to end the conversation and leave the room. अगर वो आपका डोर है जहाँ उसके साथ में आपका है और आप वो उस तरफ दरवाजे तरफ पैर करके बैठे हैं, इसका मतलब वो अभी जाने की तैयारी में. ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें जो कि आपको आगे बहुत काम आने वाली है. Rubbing or touching nose when answering a question means is not, ये कंप्लीट हो गया. So अब हम कुछ करेंगे इसमें, आप मुझे बताइए कि ये क्या आपको दिख रहा है. ये एक मिनट, चैट बॉक्स कैसे आएगा. हाँ, so is it the right posture? The person who is No, sir. No, sir. No, sir. No, Is it the sir. right posture? No, sir. It has to be open, right? Yes, sir. हाँ. तो ये मैंने आपको बताया कुछ बातें. assumption of lies, तो ये काम नहीं करने होते हैं कि जब आपको अपना आप अपना हैंड अपने नोज पे टच करते हैं तो ये चीजें नहीं करना होता. ठीक है, इसमें जो है आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना होता है. ये आपके केस में तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा बिकॉज आप थोड़ा सा दूर पे बैठेंगे, बट जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे आपको थोड़ी सी दूरी मेंटेन करनी होती है, जिसे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी कहते हैं. आप आज के डेट में बहुत ज्यादा है, सो ये चीजें एक कन्वर्सेशन डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं. देन पीपल आर मोर कंफर्टेबल. ग्रीटिंग, सो इस तरह से लोग मिलते हैं, तो लोग कई बार इससे दूर दूर से मिलते हैं, अरे भाई जरा, तो इस तरह से नहीं मिलना चाहिए, बट यू नीड टू ग्रीट द पर्सन प्रॉपर्ली. In your case, you can greet the person by your smile and the way you say how do you do. इस तरह से जब आप मिलते हैं. थोड़ा यहाँ पे लाइट चली गई, लेकिन आई होप you are able to see me. नेट चलता रहेगा. Yes, sir. Yes, sir. हम बॉडी लैंग्वेज में बहुत जरूरी बात आती है हैंडशेक्स की, जिसमें कि हम बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की, कि किस तरह से आप अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से आप अपना प्रेशर अप्लाई करते हैं, और किस तरह से आपका ड्यूरेशन ऑफ हैंडशेक होता है. तो आपका जो हैंड एक्सटेंड करने का तरीका है वो वार्मथ होना चाहिए. आप जो प्रेशर अप्लाई करते हैं जब हैंडशेक्स कर रहे हैं तो, और ड्यूरेशन ऑफ हैंडशेक शुड नॉट बी मोर एंड शुड नॉट बी वेरी ब्रीफ. तो इट हैज टू बी 2 to 3 seconds एंड देन यू नीड टू टेक योर हैंड्स बैक. सो बेस्ट वे टू हैंडशेक, कभी आपको चांस लगे या जिस तरह से आप अपने आपको ऐसे पर्सनालिटी ग्रो कराएं, होल्ड द हैंड फर्मली, मेंटेन प्रॉपर आई कांटेक्ट and greet the other person and say his or her name with doing so, and of course smile a lot, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. Yes, Everybody. sir. Very nice. बोलते रहे, बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा शोर होना चाहिए क्लास में. Okay, so now we'll see a very good kind of body language that you must practice. जैसे चलिए जल्दी से कुछ काम करते हैं, कुछ बढ़िया सा एवरीथिंग. आपने देखा होगा आपके साथ में कुछ लोग होंगे जो ऐसे हैंड रब करके कुछ काम करने के उसमें होते हैं. तो दैट शोज दैट द पर्सन वांट्स टू speed up things. He thinks he will receive positive results. The speed at which the person rubs his arms together signals whom he thinks will receive the positive results that are expected. तो ऐसे करके भी अगर आपका इंटरव्यू ऐसे कर रहा है, चलिए हो गया बस, आप बताइए आप इसके बारे में. या अगर उसने ऐसा कर दिया, इसका मतलब वो आपको हायर करने ही वाले हैं 100%. वो आपके इंटरेस्टेड हो चुके हैं
और बस वो हाथ रब करने का, चलो कुछ अच्छा काम करने से पहले करते हैं, चलिए कोई करते हैं, अच्छा, तो वहां पे वो वही लिखेंगे जो आप चाहते हैं कि हायर्ड। ये एक तरीका होता है। होल्डिंग द हैंड क्लेंच्ड लोअर पोजीशन सिग्निफाइज होल्डिंग बैक नेगेटिव एटीट्यूड व्हिच माइट बी फ्रस्ट्रेशन और बोर्डम। तो कई बार आप बहुत ज्यादा इस तरह से आपने हाथ को नीचे रखा, आप बंद करके हैं, तो आप अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, तो ये भी चीज एक्सपेक्टेड नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा। लेकिन आप देखेंगे हॉस्पिटैलिटी में बहुत सारे फ्रंट ऑफिस में, F&B में लोग इस तरह से रखते हैं, तो आपको नहीं करना है एज ए शेफ, आपको हाथ बंद करके नहीं रखना, बट आप जो करें तो उसके बाद क्या है वो आपको समझनी है। अब इतना आप पढ़ चुके हैं, तो अब इसका मतलब मुझे बताइए कि ये जो पर्सन बैठा है, अगर हाथ ऐसे करके बैठे तो उसका क्या मतलब है? इन द चैट बॉक्स कितने लोग जगह देखते हैं? सबको जगह होना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? जो आपको समझ में आ रहा है आप चैट बॉक्स में लिखिए कि ये जो पर्सन है हैंड्स क्लेस्ड इन द मिडिल पोजीशन, इसका क्या मतलब है? यस, कम ऑन गिव मी द आंसर। नेगेटिव इंप्रेशन सेज नरगिस। चलिए ठीक है, और बताइए। भाई बाकी लोग भी लिख सकते हैं, वो सोच रहे हैं, ठीक है निकट, ठीक है। एटीट्यूड है, ही इज थिंकिंग समथिंग। पूजा आप बहुत सही जा रहे हैं, बिल्कुल, ही इज थिंकिंग समथिंग, ठीक है। और कोई? मैं भी कुछ ना कुछ कर रहा हूँ ना, मैं भी कुछ सोच रहा हूँ। लिसनिंग केयरफुली, ओके, या। तो देखिए यहाँ पे जो मतलब है, ही इज इनटू अ थॉट प्रोसेस, ठीक है, एंड दैट इज अ पॉजिटिव साइन, नॉट अ नेगेटिव साइन। यस, ही इज थिंकिंग, वो नीचे देख के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और ये से लेडीज के केस में अगर वो ऐसे हैं, दैट मीन्स अ पावरफुल पर्सन, या पावरफुल नहीं भी है तो दैट शोज सुपेरियरिटी। अगर लेडी आपके किसी इंटरव्यू में आके इस तरह से बैठेंगी, तो आप समझ जाइए कि वो लेडी की पोजीशन उस कंपनी में बहुत स्ट्रांग है, और या फिर वो बहुत स्ट्रांग HR में है, जो भी इस तरह से होल्ड करते हैं। आपने कुछ मूवीज वगैरह में जरूर देखा होगा। थैंक यू सुमित्रा, थैंक यू खुशबू फॉर गिविंग द आंसर। खुशबू, बिंदु, खुशबू सिंह, वेरी गुड दैट यू आर कंट्रीब्यूटिंग। इसको बोलते हैं रेज स्टेपल। ये आप मैंने दिखाया, मैं अभी कर भी रहा था ये अननोइंगली, लेकिन ये भी होता है जैसे ये इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। अब जिस तरह से ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब सोच रहे हैं। हाँ ठीक है, आप बताइए। ये एक पॉजिटिव साइन है आपके इंटरव्यू के अंदर। अगर इंटरव्यूअर ऐसे कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ पॉजिटिव साइन। प्लीज आप अपना काम जारी रखिए, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। यस, रेशमा तिर्की कुछ सोच रहे हैं, वेरी नाइस। सत्यवती कुमारी सोच रहे हैं, वेरी नाइस, थैंक यू। एक शायद मिस हो गया ना। हाँ, और अगर इसके बराबर वाला लोअर स्टील बेस, तो ये इंटरेस्टेड नहीं है पर्सन। अगर पर्सन ऐसे बैठे हैं, उस तरह से नीचे करके बैठे हैं, तो इंटरेस्टेड नहीं है। उनको वापस अलाउ, उनको वापस कुछ करिए कि जो वापस से उसमें है। हैंड टू फेस जेस्चर्स कुछ हमने कर लिए हैं, तो ये आपको पता है। फॉर एग्जांपल आई रब, नोज टच, तो मैंने मना किया आपको ये चीज फेस में नहीं करनी है। तो ये सब भी चीजें होती हैं सर। हाँ सर बताइए। ये कान को करके बोलना तो मतलब 100% लाए, ये मैं आपको बता दूं। ये है माउथ गार्ड, इसका क्या मतलब है बताइए जरा, बताइए इसका मतलब क्या है द माउथ गार्ड। अगर कोई ऐसे, हाँ जी बताइए, या फिर ऐसे करके, क्या मतलब है इसका आपके माइंड में? नीतू कुमारी से थिंकिंग। और कोई? नीतू वेरी नाइस। थोड़ा शॉक्ड है वो, क्यों? कुछ अच्छा, झूठ बोलने वाला है। अच्छा, झूठ बोलते वक्त। लेकिन सबसे बड़ी बात है कुछ छुपा रहा है। जो इसका जो मेन है, कुछ छुपा रहा है, तो आपको वो हाथ नीचे आना चाहिए। नहीं तो हाँ, शाइंग हो सकता है, बट नॉट डेली शाइंग नहीं है ये। वॉचिंग यस, बट कुछ छुपा रहा है वो अपनी बात, और वो चीज हाथ उसके नीचे आके तब बात ज्यादा अच्छा है। सामने वाले के बारे में कुछ सोच रहे हैं। यस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक सीमा। तो ये कॉलर पुल है। जब अगर मैं कहता हूँ गर्मी बहुत हो रही है, या फिर पीपल यूज कॉलर पुल जेस्चर्स व्हेन दे जस्ट टोल्ड अ लाई एंड सस्पेक्ट दैट दे हैव बीन कॉट। कई बारी आपने किसी से कुछ पूछा और वो पकड़े गए, तो ये करने का मतलब है कि वो पकड़े गए। और कई बार हो सकता है कि फ्रस्ट्रेटेड है, या बोर हो रहा है, या फिर कहीं समस्या उसको लग रही है जो कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ये बॉडी लैंग्वेज आपको तभी भी काम आएगी जब आप किसी
अपने साथी के साथ काम कर रहे हैं, वहां भी इस चीज को आप यूज कर सकते हैं। हैंड जस्ट, ये 3 तरह के मूवमेंट है। तो पहले में वो ये देखिए, पहले मूवमेंट है सुपेरियरिटी, कॉन्फिडेंस एंड जेस्चर, ठीक है। सेकंड मूवमेंट है हैंड ग्रिपिंग जेस्चर, एंड थर्ड इज अपर आर्म ग्रिप। जो सेकंड, अगर ये हाथ ऊपर बढ़ रहा है, इसका मतलब अनइंटरेस्टेड, और लास्ट वाला तो बिल्कुल ही अनइंटरेस्टेड है, ठीक है। तो इससे आप पकड़ सकते हैं कि वो पर्सन आपके काम में इंटरेस्टेड है या नहीं है, कभी भी आगे जब आप बॉडी लैंग्वेज को यूज करेंगे। ये वाला बताओ सर, आज पढ़ाओ। अच्छा, वो क्वेश्चन था सर, हाँ ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? व्हाट या बोरिंग लग रहा है, या वेरी गुड निकट, या वेरी नाइस, वेरी नाइस। बोर हो रहे हैं आप तो बोर नहीं हो रहे? ठीक है चलिए। तो ठीक है, तो सेकंड वाला जो है वो है इंटरेस्टेड इवैल्यूएशन। जब आप सोच रहे हैं, जब वो सोच रहे हैं, हाँ ठीक है। एक बात और ध्यान करेगा, अगर राइट हैंडर पर्सन, ये बात ध्यान करेगा, अगर राइट हैंडर पर्सन लेफ्ट हैंड से कर रहा है सर, तो वो एक्टिंग कर रहा है, ठीक है। राइट हैंडर पर्सन लेफ्ट वाला राइट से कर रहा है तो एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि नेचुरली है वो अपने राइट हैंड को ऊपर करेंगे। ये भी सोचने वाला सिंबल है। पहला है नेगेटिव, अगर राइट हैंडर कर रहा है, और फीमेल वर्जन ऑफ द चिन स्ट्रोकिंग। अब ये है आपको इवैल्यूएट कर रहे हैं, 100% लास्ट स्टेज है कि भाई आपको इवैल्यूएट करके आपको हायर करने वाले हैं इंटरव्यू में। ये वाला मैंने कर लिया है, ठीक है। स्टबर्न एटीट्यूड, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वाला नहीं रखना है। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि वो स्लाउच कर रहा है। स्लाउच मतलब कि जो आपका बॉडी मूवमेंट है, कैसे बताएं, चलिए ये मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, तो ये बेसिकली ये कर्व जो आ रहा है ना, ये कर्व नहीं होना चाहिए। जब आप बैठेंगे कभी भी किसी भी इंटरव्यू रूम में, तो आपकी चेयर से कम 2 इंच की दूरी आपकी होनी चाहिए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे मैं बैठा हूँ, आपको चेयर दिख रही है कि नहीं दिख रही आपको, तो मुझे थोड़ा सा आगे बैठना है। मैं शुरू से आगे ही बैठा हूँ, लेकिन मैं आपको खाली दिखाने के लिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आगे रहें। यू शुड नॉट सिट लाइक दिस। अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर मैं ऐसे बैठा होता ऐसे, अच्छा भाई, हाँ ओके, हाँ ये समझ लो, तो आपको दिखता है कि हाँ ये थोड़ा सा कंफर्टेबली बैठे हैं। और ये एक बेकार साइन है आप इंटरव्यू के लिए। तो थोड़ा सा आपने आगे रहना है, प्रोएक्टिव रहना है जब इंटरव्यू में आप बात कर रहे हैं। ये आप अभी आपके लिए इतनी जरूरी नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। ये है रेडी पोजीशन, ये जेंटलमैन के लिए है, लेडीज के लिए थोड़ा सा और हो सकता है। सो ये थोड़ी सी रिकमेंडेशन है, आप देख लीजिए। मैं पढ़ देता हूँ इसको। अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, यू नो, यू हैव टू हैव एन ओपननेस, एन ओपन आर्म, ठीक है। डोंट ब्लिंक कॉन्स्टेंटली, ये कॉन्स्टेंटली ब्लिंक नहीं करना होता है जब आप किसी भी उसमें आप बॉडी लैंग्वेज में कर रहे हैं। ट्राई टू कीप अ डायरेक्ट लुक एंड एस्टैब्लिश आई कॉन्टैक्ट विद द पीपल यू आर टॉकिंग टू। डायरेक्ट बात कीजिए, ठीक है, डायरेक्ट। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाएगा। डोंट बाइट योर लिप्स और मॉइस्चर देम विद योर टंग। ऐसे नहीं करना, इस तरह से नहीं करना, क्योंकि इससे भी नर्वसनेस शो होती है। Always keep your mouth shut while you are listening. So listening is altogether different concept. एक listening एक ऐसा एलिमेंट है कि कई बार हमें लगता है हम सुन रहे हैं, लेकिन 2 वर्ड होते हैं, hear और listen। या तो हम उसको सुनते हैं, नहीं भी सुनते, और कई बार हम उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो उसका एक अलग, हम लोग पूरी क्लास कराते हैं इसके ऊपर। पर ठीक है, यू शुड बी अ गुड लिसनर। अगर गुड लिसनर होते हैं, यू कैन बिकम अ गुड स्पीकर। Maintain an appropriate position and avoid constant abrupt movements. Control the movement of your hands and keep them visible. And do not allow any objects to come in between you and the interviewer. तो ये कुछ recommendations हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है अपने आगे के सफर के लिए। And once again, स्क्रीन शेयरिंग मेरी बंद हो गई, मैं वापस से गैलरी में जाता हूँ, ठीक है। सो वापस से हम लोग फिर दोबारा से एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि एक बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी आर्ट है जिसको कि आप सीख के आप यू कैन डू वंडर्स इन लाइफ। और जो आप शुरुआत में एक क्वेश्चन आया था आपसे कि मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं नहीं कर पाती, वो बॉडी लैंग्वेज कई हद तक कवर कर लेती है। तो बी रेडी विद दिस पार्ट अबाउट बॉडी लैंग्वेज, अबाउट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ,
एंड जस्ट टू एंड द सेशन, मैंने एक आपके लिए खास एक कविता लिखी है, तो कोई सुनना चाहता है कविता? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताओ, Of course, yes, कैमरे में sir. आके बताओ, ऐसे कैसे पीछे छुपे हो सब लोग? यस यस, कहाँ है कैमरा? यस सर। तो थम्स अप करके दिखाओ, थम्स अप करके दोनों हाथ से, अगर सुनना चाहते हो तो। और मेरे साथ बोलनी भी है फिर, ठीक है? Yes, sir. Very nice, very nice, very nice. Okay, so now again sharing the screen, and I am sharing the poem specially written for Kaushal College, Ranchi. इसलिए तो नहीं देखा है मैंने। हाँ, क्या नहीं दिख रहा? ये बंद कैसे होगा? कभी कभी टेक्नोलॉजी ना दिक्कत दे देती है। इसको मैं करता हूँ बाद। अब हम जाते हैं गो टू स्लाइड, गो टू स्लाइड, ऐसे बढ़ जाते हैं। ओके, सो इस पोएम का नाम है, बहुत सिंपल सा नाम है, और सब लोग अनम्यूट करके मेरे साथ बोलेंगे। ओके, अनम्यूट आ जाइए, कैमरे पे आ जाइए। ओके, सब लोग आ जाइए कैमरे पे। Yes, और सब sir. लोग बोलेंगे। Yes, sir. हाँ बिल्कुल, आवाज मेरी वहां तक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपकी आवाज मेरे तक पहुंचनी चाहिए। ओके, ठीक है। Yes, sir. पहली लाइन है, नौकरी का चढ़ा बुखार, नौकरी का चढ़ा बुखार, मन में आया एक विचार, मन में आया एक क्यों ना मैं एक नौकरी पाऊं, तो ना मैं एक नौकरी पाऊं, इंटरव्यू में धाक जमाऊं। इंटरव्यू में धाक। दोबारा बोलो भाई, ऐसा नहीं चलेगा, दोबारा बोलो एक साथ, 1 2 3। क्यों ना मैं एक नौकरी पाऊं, क्यों ना मैं एक नौकरी पाऊं, इंटरव्यू में धाक जमाऊं। इंटरव्यू में भाग जमाऊं। हाव भाव जब मैंने जाना, हाव भाव जब मैंने हाव भाव मतलब बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव जब मैंने जाना, प्रेजेंटेशन जब पहचाना, ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करना, पहचाना, प्रेजेंटेशन जब पहचाना, ऐसे करते हैं। हाव भाव जब मैंने जाना, हाव भाव जब मैंने जाना, इंटरव्यू जब, प्रेजेंटेशन जब पहचाना, प्रेजेंटेशन जब पहचाना, उन दिया ऐसा ताना बाना, उन दिया ऐसा ताना बाना, आखिर था सबको चौंकाना, आखिर था सबको चौंकाना, अपने काम से नाम बनाना, अपने काम से नाम बनाना, मन में भरा एक आत्मविश्वास, ऐसे करके बोलेंगे, मन में भरा एक आत्मविश्वास, मन में भरा एक आत्मविश्वास, मन में भरा एक आत्मविश्वास, इंटरव्यू का जब चढ़ा बुखार। इंटरव्यू का जब चढ़ा तो किसको अच्छा लगा जरा चैट बॉक्स में लिख के बताइए। So thank you from my side, Saurabh sir. I hope this session was fruitful for everybody. I want to see something in chat box. आ रहा है कुछ? अरे वाह, सबको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। तो ऐसे ही अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, अपने आप को अच्छे अपने वातावरण में रखिए, और अपनी बातों को कहना सीखिए, क्वेश्चन पूछना सीखिए, और कहीं ना कहीं ये आपको बेटर रिजल्ट देगा। ध्यान करेगा हमेशा, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। जिंदगी में सच उनके साथ ही रहता है जो कि अपने ख्वाबों को सच करना जानते हैं। तो आप धीरे धीरे करके ही सही, छोटे छोटे स्टेप लेके ही सही, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। इंटरव्यू आए, कोई आए, परवाह नहीं, इसके सामने बैठे हैं परवाह नहीं, बस बैठना है और अपनी बात को रख देना है। ठीक है जी? Yes, sir. Yes, sir. Thank you from my side, Sakesh sir and Saurabh sir. Now you can take over. Thank you very much. Oh, Thank you, wonderful. sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir.
So I think we don't need to say anything. Students' reaction is actually saying a lot. So many congratulations and thanks a lot, Piyush sir. So it's been wonderful to have you. Students, क्या सर से Same here. कोई और इंटरेक्शन करना है 10-12 दिनों बाद? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सर देख एक लीजिए. रिक्वेस्ट होगा सर, शाकिब सर मेरे को रिकॉर्डिंग जरूर भेजिएगा ताकि मैं भी देखूं क्या चल रहा है, Definitely, कौन कैसे definitely. कर रहा है. ऐसे तो कह रहा है यस सर, पता नहीं सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं. मैं भी थोड़ा सा इनको स्टडी करूंगा जरा. कौन क्या Definitely, कर रहा है, ठीक definitely. We will share you before evening. ठीक है, है? हाँ you will get it. बिल्कुल सर. And as you could see the reaction, they want you again. So Okay. we request on behalf of our students to again plan a session. ठीक है, maybe some 2 weeks later. The topic would be of your choice, but that is finally going to benefit our students. ठीक मैं है. आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप इनको ना एक वो करिए, जैसे कि हम वोटिंग करते हैं, ठीक है सर. तो उसमें आप कुछ क्वेश्चन इनको भेजिए जिसमें कि वे रिस्पॉन्ड करें कि ये किस चीज पे एक सेशन जा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास कंटेंट जब होता है ना, हाँ, तो उससे क्या होगा ना कि हमारा एक कंसेंसस बनेगा उसके, और ये काम आप किसी भी एक स्टूडेंट को बोले जो कम बोलता हो, उसी को देना आप ये काम. ठीक है. ठीक है, जो सबसे कम बोलेगा उसी को काम पकड़ाना है. ठीक है, और उससे क्या होगा ना कि जब वो बात करेंगे, जब होंगे, तो एक आपको कॉमन गोल मिलेगा और उस पर फिर काम करने में हमें भी मजा आएगा और फिर बच्चों को भी थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलेगा. Definitely, definitely. We will do it. ठीक है. So thank you so much. Now I request Chef Saurabh to formally propose a vote of thanks, and we will send you something in your mailbox as a token of अरे सर आपने बोल दिया उतने बहुत है. as a token of thanks from our students. So Oh, yeah. over to you, Chef Saurabh. ठीक. Thank you, sir. So what to tell, everything we are getting the experience in front. इससे अच्छा और हो क्या सकता है जो हम लोगों ने अभी एक्सपीरियंस किया. Still, we are more than obliged and more than happy, sir, to have you in this one of the most exciting sessions we had till now, from when the online sessions started on different topics. And it is very much obvious from the reactions and the interest level of the students, what we can see in front, that they are very much in a state of mind that they have taken each and everything what you have given them, sir. And we are very hopeful, as requested by Shakesh sir, that we will have more these type of sessions from your end in near future, sir. And thank you all for what you did. Thank you for your slides and the inputs as well as your interactions, sir. It was a very lively, interactive session from both ends. Students not only, sir, learned, they enjoyed it. It was very obvious from their body language, and we can still see from their faces, facial expressions. So thank you once again very much on behalf of our team, on behalf of ITI Kaushal Culinary College Ranchi, sir, to have you in this session. And we got so many things from you. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you so much, Okay, Piyush sir. sir. And thank you, students. जोहार for जोहार जोहार जोहार. धन्यवाद, धन्यवाद, जोहार. Johar. जोहार. Thank you. Bye bye. Thank you, sir.